हिजाब पहनने से मतलब मतलब हिजाब पहनने से कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन रहता, लाइक मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर हैविंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग हिजाब, बिकॉज it is just a piece of cloth. If we see, like nowadays, maybe for some or the other reason people are wearing scarf, like not just Muslims but every other religion people, they are trying to protect themselves. It's okay, fine, protection नहीं तो नहीं, but at least pollution से बचने के लिए किसी ना किसी रीज़न के लिए पहना जा रहा है स्कार्फ, ठीक है. सो मतलब लाइक जैसे बोलते हैं ना कि यू आर हैविंग राइट टू डू ईच एंड एवरीथिंग. लाइक अपन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, ठीक है, लाइक वी आर इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, राइट. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर हैविंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग दिस एंड व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड रिगार्डिंग हिजाब. So like when it is said that it is a secular country and everybody is having equal right to do everything and anything, I don't understand why the question is being raised. Like I feel like it should be given, like it is should, like, okay fine, not a priority, but at least it should be considered. Like if somebody is trying to wear like maybe due to some or the other reason, maybe like okay fine, not professionally or anything, but few people have some personal reasons also due to which they wear, or else apart from that it is a personal choice. Everybody is having equal right, so it is their right, and as we say, like everybody is having an equal right to study, work and everything, so it should be equal right. person का equal right है, मतलब उसकी खुद की choice है भाई, करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आप कंट्री लाइक सिटीज़न है, आप इंसान हैं, आप कुछ भी हो, हर किसी का हक बनता अपनी मतलब अपन जो करना चाहे वो करने के लिए. मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है वैसे दूसरी बार नहीं होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि बोले तो जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब इंसान पढ़ने जा रहा है पहले तो उसका हक है पढ़ने का, ठीक है. प्लस आप वो चीज़ को मतलब हिजाब को आप पढ़ाई की जगह पर रेस करके पहले तो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस कम कर रहे हैं. Secondly, it is completely showing that the people from education background, the people who are literate, who have a complete good mindset, they are doing this that doesn't suit them. Because आप educated, you are educated, so you should have minimum common sense, right? कि किस चीज़ पे रेस करना चाहिए. If we see apart from this, there are many things on which the question should be raised. Like our education system. What is the education system? Like from past so many years, the entire syllabus is being repeated. उसके ऊपर करना चाहिए. They should work on that rather than on this, on something which should be ignored. It is negligible. Like, there is nothing to be point out. So what I feel is it shouldn't happen again. Like इतना सब होने के बाद I don't think it should happen again. People should be given equal priority and equal. Everybody should be given a equal chance of doing whatever they like to. Schools, colleges, ठीक है fine. Public place पे बोले तो हम सोच सकते, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इट शुडंट बी डन लाइक दिस. बिकॉज आप ऐसा हम लाइक हिजाबीज के ऊपर ये पॉइंट नहीं हो रहा, ठीक है. इट इज़ ऑन द पीपल हु आर द एजुकेशन सिस्टम, उसके ऊपर पॉइंट आउट हो रहा. लाइक इट इज़ शोइंग हाउ इज़ द माइंडसेट ऑफ दोज पीपल. हम हिजाब पहने, ठीक है फाइन, दैट इज़ अदर थिंग, बट उन लोगों के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है फाइन. बीइंग एजुकेटेड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू आर पासिंग. हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारा हक है. We need equality, we need equality, we need hijab, we need hijab. Safe constitution, safe constitution. ये जो स्टार्ट हुआ स्कूलों से, कॉलेजों से, यहाँ पर यूथ को भड़काना है और इस तरह से लाना जहाँ पर हमारी कौम के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती, ख़ास तौर से लेडीज़ के साथ. ये मेरी मुस्लिम बहनों के साथ ही नहीं, हर जाति धर्म की लेडीज़ के साथ नाइंसाफ़ी होती. उन लोगों का मकसद ये है कि इस तरह दंगा फैलाएंगे, इस तरह फसाद फैलाएंगे, तो जो औरत बच्चियाँ हैं वो डर के घर में बैठ जाएंगी, डर के पढ़ाई करने के लिए नहीं आएंगे. हमारी जात के नहीं, हर जाति धर्म के जो है माँ बाप जो हैं बच्चियों को बोलेंगे कि भाई वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा, कॉलेज को मत जाओ. इनका मेन मकसद ये है कि औरत हमेशा पीछे रहे, इलिटरेट रहे, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आगे पढ़े नहीं, इनके सामने आके क्वेश्चन करना नहीं. और ख़ास तौर से हम लोग जब आके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सियासत में भी आ रहे हैं, तो इनको यही तकलीफ़ है कि अरे भाई मुसलमान में अवेयरनेस आ जा रही, मुसलमान जो है होशियार हो जा रहा, अपने हक़ के लिए लड़ रहा, लिहाजा इनको यहीं से दबाओ. यही कैटेगरी से इनको एजुकेशन से दूर रखना सबसे बड़ा इनका पहला स्टेप है. अगर एजुकेशन नहीं है तो आदमी आगे का कुछ सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, अपने हक़ के लिए खड़ा रहेगा नहीं. ये जो निचली सतह के लोग को और नीचे दबाने की इनकी एक साजिश है. प्यारे भाई,
मेरे माँ बाप और सबके लिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, मैं हिजाब के लिए बात बताना चाह रही हूँ। हिजाब हमारा मुसलमानों का हक है। हम हिजाब इसलिए पहनते कि गैर मर्द हमको नहीं देखना। मुसलमान का हमारा इस्लामी तरीका है, हमारा चेहरा कोई नहीं देखना, हमारा जिस्म किसी को नजर नहीं आना, इसलिए हम पहनना चाह रहे। भाई आपकी मर्जी, आप भी चाहे तो आप भी पहन लो। आजकल हमारा ड्रेस आप लोग पहन ले रहे। शर्ट शलवार कोई हिंदू पहनता था पहले, कोई मुंह का कपड़ा बनता था, क्यों बन रहे? फिर ये मुसलमान का चिमनू था, क्यों बन रहे आप लोग? ये कोई नहीं बता रहा। मुसलमान बोल के हटे, मुसलमान पे पीछे पड़े हुए है बीजेपी वो लोग। क्या भाई आपके पास हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे मिड्डी डालो, आप लोग जीन्स पैंट पहन लो। हम कभी एतराज किए आप लोग को? आप क्यों चल रहे ऐसा बोल के हम कभी बोले? हमको क्यों करे भाई? हम हमारा भी ये हिंदुस्तान में हम सब बराबर है भाई, हिंदू मुस्लिम भाई हर सब मिल के रहना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? और हिजाब पहनने से फर्क क्या है? हिजाब एक बच्ची पहन के स्कूल को जा रही थी, पढ़ने के लिए जा रही थी। आप 30, 35, 40 आदमी मिलकर वो बच्ची के पीछा करे तो बच्ची डर के क्या हो जा रही थी? बच्ची हिम्मत करके अल्लाह अकबर बोलकर आगे बढ़ी तो अल्लाह साथ दिया, नहीं तो बच्ची की जिंदगी क्या होती थी? ऐसे लोगों के, ऐसे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई आप लोग? क्या हमारा हैदराबाद हिंदुस्तान में हमारा वतन नहीं है क्या हम लोग का? क्यों हमारे पीछे पड़ने लगे? कहीं जाने नहीं देते। कोई मुसलमान को हिंदू गलत करे तो मुसलमान बच्चे के लिए आके जेलों में डालते। किसी को कोई गोश्त खा रहा तो मुसलमान करे, किसी को मारा तो मुसलमान करे। क्या भाई हम क्या गलती करे भाई? क्या इस्लाम हमारा इतना नहीं सिखाया कि हम लोग का अच्छा बुरा मालूम होने के लिए क्यों हमारे पीछे पड़े हुए है? इसलिए हम लोग भी हमारे हिंदुस्तान के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे। आप लोग की जितनी अथॉरिटी है उतनी हमारी भी है। हमारे बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान के लिए लड़े झगड़े आगे बढ़े। आपको हिंदुस्तान चुप नहीं मिला है? हमारे लिए हमारा पूरा हक है भाई। तुम दूसरे देशों को मत मिलाए। हमारा हिंदुस्तान रहेगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरेंगे। हमारा हिंदुस्तान है, जय हिंदुस्तान। अब हम किसी को नहीं देंगे। सुने, हम हिंदुस्तान में मिल के रहेंगे। हमारा पूरा ख्याल करना, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं बोलना चाहिए। हर एक से हमको भाई हिजाब भाई नहीं हिजाब नहीं डालेंगे भाई, नहीं डालेंगे। मार हिजाब क्या है? हम गैर मर्दों के देखना, गैर मर्द के किसका निगाह कैसी रहती है हमको नहीं मालूम। हमारे इस्लाम में ये है कि हमको कोई गैर आदमी नहीं देखना चाहिए, इसलिए हम लोग मुंह बंद करते, जिस्म से ही कपड़े पहनते हैं। नहीं हिजाब नहीं डालेंगे भाई, नहीं डालेंगे। मार हिजाब क्या है? हम गैर मर्दों के देखना, गैर मर्द के किसका निगाह कैसी रहती है हमको नहीं मालूम। हमारे इस्लाम में ये है कि हमको कोई गैर आदमी नहीं देखना चाहिए, इसलिए हम लोग मुंह बंद करते, जिस्म से ही कपड़े पहनते हम। नहीं तो हम खुले फिरते थे भाई। नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं है तरीका, इसलिए हम लोग ऐसा जाना चाह रहे। आपको समझ में आया तो आप लोग वो क्या करो, या तो आपके जगह आप पहन लिए, हमारी जगह हम पहन लिए। हमारे ड्रेसों को हमारे को कभी एतराज़ नहीं करना। आपको हम कभी एतराज़ करें? आप क्यों ऐसा पहनते बोले? आपको कहीं कोई जा रहे तो रोके, क्यों हमारे को रोक रहे आप लोग? आपको हम लोग को आगे बढ़ाना है। हमारा पूरा अथॉरिटी है हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, हम भी यहीं मरेंगे।